A very good morning, dear student. Today we'll focus on insertion of an element into an array. Okay. So now concentrate on that example that we have seen that example for each and every operations of an array, right? So I'm taking the balance is a array name in which we have stored total number of elements is 5 elements. Okay. And the location will be start from zeroth location, 0 to 4th. Okay. We are storing the 100 and 1000, 2.0, 3.4. Likewise, we are storing the value. Okay. Now we have to insert the element give in given array. Okay. Array already create किया है. उसमें हमें element को कैसे insert करना है. This point we need to clear today. Okay. So just focus on this example. This is one type of array. The array type is double. Okay, that's why the value is given in floating point. Okay, now, next diagram, or you can say that the array example that is balance in which the upper side text box given the indices. Means 0 location में 1000 value है, 1 location पे 2.0, second location पे 3.0. Likewise, we are going to store the value. Okay, and third one 7.0, fourth one 50.7 and last one is garbage value. Because वहाँ पे array हमारा कहाँ तक है 4 तक है, बट मैंने 5 तक रिप्रेजेंट किया है क्यों? क्योंकि मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है. इंसर्ट करना मतलब ऑलरेडी एरे है उसमें मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करना है. I hope everyone is agree with this. So उसके लिए क्या लॉजिक आएगा? Okay, so logic will be okay. So first of all, again we have to focus on program that उसमें क्या होगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Again we have to declare the array and all kind of concepts, right? So just we are concentrating on that. Okay. So first concentrate on, don't concentrate on language, just concentrate. I am declaring the array here. Again position variable आएगा. Enter the number of elements into array. Array को scan करना पड़ेगा. This process we are going to do. And हमें पूछना पड़ेगा कि enter the location where you want to insert the element. जैसे हम लोगों ने delete के लिए पूछा था. Similarly, we have to ask where you want to insert an element. Okay. Then we have to scan that element. Fine. मतलब कौन से पोजीशन पे इंटर करना है वो हमें पहले पूछ लेना पड़ेगा. उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू को इंसर्ट किया है. If I want to insert the value into the particular position, तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? स्कैन करना पड़ेगा. तो यहाँ तक जो 4 to 5 जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं फॉर लूप के पहले वो सारे कॉमन है. ओके, कौन से लोकेशन पे मुझे इंसर्ट करना है वो मैंने पहले कर लिया. ओके, नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉजिक हियर. ओके, लॉजिक कैसे आएगा उसका? ओके, सो मैंने क्या क्या बोला? हमने एरे डिक्लेयर किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू एरे वो भी स्कैन किया. उसके बाद कौन से पोजीशन में नया वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है वो पोजीशन भी स्कैन किया. यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ. अभी मैंने क्या बोला? आई वांट टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट. लेट्स से मैं यहाँ पे बोलती हूँ मेरी जो न्यू वैल्यू है हियर, जस्ट कंसंट्रेट. न्यू वैल्यू विल बी, इट इज अ न्यू वैल्यू मुझे जो इंसर्ट करनी है वो कहाँ आएगी? ओके, न्यू वैल्यू इक्वल टू लेट्स से 80.0 वैल्यू आई नीड टू इंसर्ट. ओके, सो अभी ये न्यू वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है तो पोजीशन विल बी, मैं पोजीशन दे रही हूँ यहाँ पे, पोजीशन इक्वल्स टू थर्ड. ओके, मीन्स थर्ड लोकेशन में जो वैल्यू है उस जगह पे, मतलब आपको दिख रहा है 7.0. अकॉर्डिंग टू आवर array we have stored 7.0 in third location. Okay, so अभी मुझे क्या करना है? उस लोकेशन पे न्यू वैल्यू स्टोर करनी है. So what will be the logic? What you think about it? कि array में क्या changes होगा? Don't just forget what coding that we have. कैसे for loop आएगा? How we are going to do this? Don't concentrate on coding part. Just concentrate on logic. यहाँ पे logic कैसे आएगा? I want to insert the 80 value instead of 7.0. Both are given the correct answer. That is, first of all, we have to copy the new value instead of previous value, that is 7.0. New value कौन सी मेरी 80 and previous जो value है, previous value will be 7.0 on that location. Okay, so 7.0 पे मुझे क्या डालना है? I need to put the value of 80. Okay, so both has given correct answer. That is, we have to copy the value onto that location. ओके, 7.0 की जगह पे वो डालनी है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 7.0 50.7 के लोकेशन पे डालना पड़ेगा. देन व्हाट अबाउट 50.7?
इसका मतलब है मुझे 1 by 1 शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट लोकेशन पे। आई होप एवरीवन इज एग्री। अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, मैंने ये 5.7 उठाया, कहाँ पे डाल दिया, जो नेक्स्ट लोकेशन पे गार्बेज वैल्यू है दैट इज फिफ्थ लोकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ लोकेशन, वहां पे मैंने क्या कर दिया, उस वैल्यू को डाल दिया। अभी मैं क्या करूंगी, ये 7.0 उठेगा, ये कंट्रोल एक्स नहीं होता है, आई शुड बी डू द कॉपी पेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दैट वन थिंग हियर। ओके ओके, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, हम एरे में डिलीट नहीं कर सकते, हम वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप एवरीवन इज एग्री। मैंने क्या किया, एक लोकेशन जो वैल्यू है नेक्स्ट लोकेशन में कॉपी की, मतलब जहां से जिस लोकेशन पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू क्या है नेक्स्ट लोकेशन में डालनी पड़ेगी। आई होप एवरीवन इज एग्री। फोर्थ लोकेशन पे कौन था प्रीवियसली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीवियस वैल्यू इन फोर्थ लोकेशन, दैट इज 50.7 यस इंडिकेट एग्जैक्टली। बाय तो कलर। यस, तो 50.7 को उठाया, नेक्स्ट लोकेशन पे डाला, जो कि नेक्स्ट लोकेशन में, जो नेक्स्ट लोकेशन था मेरा फिफ्थ लोकेशन, उसमें गार्बेज वैल्यू था, उसमें मैंने वो वैल्यू डाल दी, नो डाउट। अभी सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, 7.0 को मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट लोकेशन पे पेस्ट किया। अभी मेरा काम बहुत सिंपल हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू यहाँ से उठाऊंगी और उसको कहाँ डाल दूंगी, इस लोकेशन पे डाल दूंगी। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। सो इंसर्शन हो गया प्रॉपरली, क्लियर एवरीवन। ओके, सो दिस इज अ यस लॉजिक। मैम। यस, सो लॉजिक फर्स्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। लॉजिक क्लियर होगा तो हम लोग कोड इजीली लिख सकते हो। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग टाइपिंग का सोचते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। कोड इज नॉट कमिंग फर्स्ट, लॉजिक फर्स्ट, देन वी हैव टू डू द कोड। ओके, अभी उसका कोड कैसे आएगा वो मैं शॉर्टली आपको बोलती हूँ। ओके, सो यहाँ तक सबको आ गया। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कौन से पोजीशन पे जो एलिमेंट को डालना था वो पोजीशन में मैं डाल दी। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला बैलेंस द एरे नेम इज, और उस कौन से पोजीशन पे, पोजीशन मतलब क्या, मेरा थर्ड लोकेशन। एवरीवन इज एग्री। पोजीशन नाम का जो वेरिएबल मैंने स्कैन किया है, उस लोकेशन में मैं डाल रही हूँ न्यू वैल्यू। आई एम इंसर्टिंग द न्यू वैल्यू हियर। ओके ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर रही हूँ। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। ओके, सो न्यू वैल्यू को मैंने इंसर्ट किया है, फाइन। बट उसके पहले मुझे क्या टास्क करना पड़ेगा, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क नाउ हियर। ओके, व्हाट आई हैव टू डू हियर, यस, मैंने ये स्टेटमेंट तो बराबर है, उस पोजीशन पे न्यू वैल्यू डालेंगे, बट वैल्यू डालने के पहले मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जिस लोकेशन पे वैल्यू डालना है, वहां से आगे के जितने भी एलिमेंट है उसको मैं नेक्स्ट लोकेशन पे कॉपी कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे फॉर लूप तो डेफिनेटली आएगा। ओके, फॉर लूप आएगा, मतलब फॉर लूप के बाहर ही हमारा स्टेटमेंट होने वाला है। सो टेल मी द फॉर लूप हियर, व्हाट इज द फॉर लूप नाउ। Suppose I am using integer I कहाँ से स्टार्ट होगा, give me the answer here. Yes, I कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, I जीरो। जीरो से Yes, कैसे ma'am. स्टार्ट होगा, हाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, जिस लोकेशन पे मुझे वैल्यू डालना है, ओके, बट मैंने क्या किया, मुझे थर्ड लोकेशन पे वैल्यू डालना था, तो मैंने किसको आगे शिफ्ट किया, विच लोकेशन, जीरोथ लोकेशन, 4। और yes exactly 4 means what, in our n term, total number of n हम लोग वैल्यू लेते हैं, so n के हिसाब से वो कौन से लोकेशन आएगा, no doubt it's I start from 4, exactly, thank you so much, the I should be start from n minus 1, I hope everyone clear this. So I will be start from n minus 1, why, because जो last location का जो element है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, let's say मैं अभी फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, 7.0 I am representing here, ओके okay. और यहाँ पे मेरा कौन है, 50.7 एज इट इज है, कंट्रोल सी, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, गार्बेज लिया है। ओके, सो हमने अभी लॉजिक देखा उसमें कि मुझे क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट लोकेशन का जो लास्ट लोकेशन का जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लोकेशन में डालना है, मतलब मैं शिफ्टिंग कैसे कर रही हूँ, ये 50.7 को उठाया और कहाँ डाला, गार्बेज में, मतलब नेक्स्ट लोकेशन में डाला। ये 7.0 को मैंने उठाया, कहाँ डाला, नेक्स्ट लोकेशन पे डाला, मतलब मैं कॉपी कैसे कर रही हूँ, फ्रॉम लास्ट लोकेशन। इसीलिए लास्ट लोकेशन हमारा कहाँ से होता है फॉर लूप में, i इक्वल्स टू n माइनस 1। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। ओके, मतलब मेरा i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉपी कहाँ से होना चाहिए, n माइनस 1 से। ओके, सो नाउ यू टेल मी द कंडीशन हियर, कंडीशन क्या आएगी, मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल सेमीकोलन देती हूँ। ओके, कंडीशन क्या आएगी, आई शुड बी, इट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, क्या आएगा, हम डिक्रीमेंटेड वे में चल रहे, कभी भी याद रखो,
जब लास्ट लोकेशन से हम लोग एरे स्टार्ट करते हैं तो हमेशा डिक्रीमेंटेशन पार्ट होता है, मतलब मेरा क्या होगा ये i माइनस माइनस। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। इस लास्ट वाली जो कंडीशन है, एवरीवन क्लियर दिस कंडीशन, दैट इज i माइनस माइनस। आई होप एवरीवन एग्री विद दिस। एनी डाउट? क्योंकि मेरा एरे डिक्रीमेंट होने वाला है। ओके, इंक्रीमेंट कब होता है? जब जीरो से होता है, बट मैंने लास्ट लोकेशन से स्टार्ट किया फॉर लूप, इसका मतलब इट शुड बी डिक्रीमेंटेड। आई होप एवरीवन एग्री। मतलब क्या होगा, फोर्थ लोकेशन का एलिमेंट फिफ्थ में जाएगा, थर्ड लोकेशन का एलिमेंट फोर्थ पे जाएगा, लाइकवाइज। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। पहला फोर आएगा, फोर के बाद थर्ड आएगा, लाइकवाइज। आई होप एवरीवन एग्री। यस एवरीबडी? ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम n माइनस वन, लास्ट लोकेशन पे है, मतलब मेरा क्या कर रही हूँ मैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। फोर्थ लोकेशन का एलिमेंट मैंने फिफ्थ में डाला, थर्ड लोकेशन का एलिमेंट मैंने फोर्थ में डाला, अभी यहाँ पे मुझे नई वैल्यू डालनी है। इसका मतलब है मैं एक से डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही हूँ, और डिक्रीमेंट हो रही हूँ मतलब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की कहाँ से कर रही हूँ मैं, अभी देखो कहाँ से मुझे शिफ्टिंग करना है, जहां से पोजीशन है। एवरीवन इज एग्री विद दिस। जिस लोकेशन पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, वहां से मैं क्या करने वाली हूँ, वहां से मुझे शिफ्टिंग करना है ना। इसका मतलब है आई जो भी रहेगा, आई ग्रेटर देन और लेस देन हम लोग सोचते हैं पहले, वो जो भी रहेगा वो पोजीशन से रहेगा। एवरीवन एग्री विद दिस। पोजीशन जो वेरिएबल है, पोजीशन मतलब थर्ड लोकेशन में जिसमें मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वो फॉर लूप कहाँ से चलेगा, पोजीशन से चलना चाहिए। और नो डाउट मैं फोर्थ लोकेशन से कर रही हूँ, तो पोजीशन जिस लोकेशन में मुझे वैल्यू डालनी है उससे तो वो छोटा ही रहेगा। एवरीवन एग्री विद दिस। मैं जब लास्ट लोकेशन से एरे के एलिमेंट शिफ्ट कर रही हूँ नेक्स्ट लोकेशन में, तो नो डाउट वो क्या रहेगा, ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर देन पोजीशन। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस, क्योंकि मैं शिफ्टिंग कहाँ से कर रही हूँ, फोर्थ लोकेशन। आई होप एवरीवन क्लियर। अक्षय, सेजल, एवरीवन, इट्स क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस, तो Yes, आई, ma'am. यस आई शुड बी ग्रेटर देन, बट कब तक करना है, जब तक मुझे पोजीशन नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई अगेन आई एम रिवाइजिंग हियर, I equal to n minus 1, that is fourth location. Okay, fine. 4 is greater than position, position की वैल्यू 3 है, yes। फिर वो क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। ओके, फॉर लूप के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को, और यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा, जब ये नेक्स्ट फोर्थ लोकेशन का एलिमेंट है, मतलब आई मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n माइनस वन, तो मुझे बोलो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, बैलेंस ऑफ, मैं क्या कर रही हूँ, बैलेंस ऑफ व्हाट, मैं यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है, अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। इक्वल टू बैलेंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड बी अ सिमिलर। ओके, बैलेंस ऑफ, नो डाउट यहाँ पे आई सब्सक्रिप्शन हमारा आने वाला है। अभी वो क्या आएगा, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं मतलब आई कहाँ से चल रहा है, n माइनस वन, मतलब मैं ये फोर्थ लोकेशन की वैल्यू उठा के कहाँ डाल रही हूँ, यस, फोर्थ लोकेशन की वैल्यू उठा के मैं कहाँ डाल रही हूँ, Location. यस, मैं कहाँ डाल रही हूँ, फोर्थ लोकेशन की फिफ्थ लोकेशन में डाल रही हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ लोकेशन मतलब बैलेंस, मतलब कहाँ से कहाँ कॉपी करेंगे हम लोग वैल्यू, कहाँ से कहाँ जा रही है, इंसर्शन ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा कैसे वर्क करता है, आरएचएस टू एलएचएस करता है। एग्जैक्टली, एवरीवन इज क्लियर। मतलब यहाँ पे कौन आएगा, हम लोग आई को कहाँ डाल रहे हैं, आई को कहाँ डालते हैं, नेक्स्ट लोकेशन में डाल रहे I हैं। plus 1. एग्जैक्टली, Yeah. सो I मच, plus one. यस। इसीलिए बैलेंस ऑफ आई लोकेशन वो कहा जा रहा है आई प्लस वन पे। आई होप एवरीवन इज एग्री। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, आई प्लस वन। आई होप क्लियर दिस लॉजिक। जब ये शिफ्टिंग हो जाएगा पूरा, ओके मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, हमारा फोर्थ लोकेशन में जो वैल्यू था दैट इज 50.7, अगेन आई एम कॉपिंग हियर। ओके, ओके, ये मुझे कहाँ डालना है, जो गार्बेज वैल्यू है इसकी जगह पे मुझे डालनी है। ओके, तो मेरा n माइनस वन स्टार्ट होगा, यस फोर, फोर इज ग्रेटर देन पोजिशन थ्री, यस, अंदर जाएगा, अंदर जाके वो क्या करेगा, बैलेंस ऑफ फोर, फोर मतलब 50.7 को कहाँ डाल देगा, उसके नेक्स्ट लोकेशन में, दैट इज आई प्लस वन, दैट इज फिफ्थ लोकेशन, मतलब ये उठाएगा और कहा जाएगा, फिफ्थ लोकेशन में चला जाएगा। आई होप एवरीवन इज एग्री। फॉर लूप अब तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ, दो यू हैव नॉट क्लियर। दैट इज लेट्स से बैलेंस, बैलेंस ऑफ कौन से लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन पे कौन चला जाएगा, बैलेंस ऑफ
fourth location. Everyone agree with this? Balance of which location we are going to store, that is fourth location. I hope everyone is clear. इसका मैंने क्या किया, आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा है. ओके, वो चला गया. हमारा फॉर लूप अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ मतलब i एक से डिक्रीमेंट होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नाउ? पहले i क्या था? 4 था. why 4? yes, why 4? टेल मी. क्योंकि हम लोगों ने n-1 से स्टार्ट किया है ना, तो i 4 है. नेक्स्ट इटरेशन में i माइनस माइनस होगा, तो i की वैल्यू क्या होगी अभी? 3. यस, 3. ओके, अंदर जाएगा. 3 इज ग्रेटर देन 3. यस और नो? नो. इसका मतलब है उसने कहा जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए. एवरीवन इज एग्री विद दिस? बट अभी मेरा एक यहाँ पे पॉइंट है कि मुझे क्या करना है. थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू थी मेरी 7.0, एग्री? 7.0 वैल्यू थी ना थर्ड लोकेशन पे, उस जगह पे मुझे नई वैल्यू डालनी है ना, तो वो भी वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी ना. एवरीवन एग्री विद दिस? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब मुझे इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे देना पड़ेगा ना, क्योंकि थर्ड लोकेशन की भी वैल्यू जो भी 7.0 है, इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग समझ में आया सबको? क्योंकि जिस लोकेशन पे मुझे वैल्यू डालनी है वो भी उठा के मुझे कहाँ डालनी है? नेक्स्ट लोकेशन पे. इसका मतलब है ये 7.0 उठेगी, कहाँ जाएगी? नेक्स्ट लोकेशन पे. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. एनी डाउट नाउ? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया व्हाई वी आर राइटिंग इक्वल टू ऑपरेटर हियर? क्योंकि मुझे जिस लोकेशन पे वैल्यू डालना है उसको भी कॉपी करना है. मैंने क्या किया, लास्ट लोकेशन की वैल्यू भी नेक्स्ट, इसमें हम लोग सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं. 50.7 को शिफ्ट किया. अभी थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू डालनी है उसको भी मुझे कहाँ डालना पड़ेगा? नेक्स्ट लोकेशन पे. दैट्स व्हाई इक्वल टू ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ग्रेटर नहीं बट इक्वल टू है, तो अंदर जाएगा. अंदर जाके नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? बैलेंस ऑफ फोर्थ लोकेशन में कौन चला जाएगा? थर्ड लोकेशन की वैल्यू. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. बैलेंस ऑफ में नेक्स्ट इटरेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी? थर्ड. यस, वी अचीव्ड आवर मेन एम. 7.0 भी चला गया. अभी वो सिंपल हो गया. फिर से आई डिक्रीमेंट बाय 1 होगा. आई की वैल्यू को होगी नेक्स्ट इटरेशन में. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई नाउ? 2. 2. अभी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. नो. फॉर लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. बाहर जाके हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप के बाहर डायरेक्टली जिस बैलेंस ऑफ पोजीशन मींस पोजीशन की वैल्यू क्या है मेरी? 3. थर्ड लोकेशन पे तू क्या कर दे? कौन सी वैल्यू डाल दे? नई वैल्यू, दैट इज न्यू वैल्यू. वो उसमें चली जाएगी. आई होप एवरीवन इज एग्री. यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या चली जाएगी? 80.0. ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे. क्लियर एवरीवन? So likewise we are filling inserted the element into an array. मैंने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन किया है प्लस उसका कोड भी एक्सप्लेन किया है. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. एनी डाउट नाउ? the element from whom? n-1. so मेरा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? फॉर लूप स्टार्ट्स फ्रॉम n-1. एग्री? एवरीवन इज एग्री विद दिस. और मैं क्या कर रही हूँ? 1 बाई एलिमेंट. मैं क्या कर रही हूँ? ये जो एरे है, एरे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. मतलब मैं पीछे पीछे जा रही हूँ. दैट्स व्हाई आई माइनस माइनस. फाइन. उसके बाद मुझे कहाँ तक शिफ्टिंग करना है? इट शुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम होम. इट शुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम होम से जाएगा थर्ड लोकेशन से. एग्री? 4 को मैंने फिफ्थ में डाल दिया, थर्ड को मैंने फोर्थ में डाल दिया. अभी मुझे क्या करना है? इसीलिए मेरा फॉर लूप कहाँ से चला? n-1 से. वो डिक्रीमेंट किया. और वो कहाँ तक करना है मुझे? कब तक करना है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ. मतलब आई मेरा स्टार्ट हो गया 4 से. आई इक्वल टू 4. ओके. 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन. लेट्स से कंडीशन जो भी है, आई मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब आई ग्रेटर ही रहेगा. पोजीशन की वैल्यू क्या है? 3 है. एग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन नाउ? 3. चेक करो यहाँ पे. 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ग्रेटर है. एवरीवन एग्री विद दिस? क्योंकि ग्रेटर क्यों लेना है? क्योंकि मुझे फॉर लूप के अंदर जाना है और मुझे शिफ्टिंग करना है. गॉट इट? अंदर गए. अंदर जाने के बाद हमने बोला कि जो n-1 मतलब फोर्थ लोकेशन की जो वैल्यू थी 50.0 उसको कहाँ डाल दे? बैलेंस ऑफ फोर्थ लोकेशन की वैल्यू कहाँ डाल दे? उसके नेक्स्ट लोकेशन पे, दैट इज बैलेंस ऑफ 5. तो 50.0 कहाँ पे चली गई? फिफ्थ लोकेशन पे. इटरेशन फिर से i माइनस माइनस हो गया. i की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 3. नाउ चेक करो कंडीशन हियर. 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. यस.
इक्वल टू क्यों दिया? क्योंकि मुझे पोजीशन, जिस लोकेशन की वैल्यू मुझे लोकेशन में मुझे वैल्यू कॉपी करनी है, उस लोकेशन की भी वैल्यू मुझे आगे शिफ्ट करनी है। इसीलिए हमने नीचे के स्टेटमेंट में क्या किया, अंदर गए हम लोग, यस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर तो नहीं बट इक्वल है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनसाइड। ओके, देन वी आर गोइंग टू कॉपी बैलेंस ऑफ थर्ड लोकेशन की जो वैल्यू है वो कहाँ डाल दी, बैलेंस ऑफ फोर्थ लोकेशन। मतलब ये 7.0 जो थर्ड लोकेशन पे था वो कहाँ चला गया, फोर्थ लोकेशन पे। आई होप एवरीवन इज एग्री। फिर से आई डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। चेक करो अभी, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आर यू एग्री विद दिस? No. Yes, ma'am. यस, तो अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली हमारा एम सेटिस्फाइड हो गया। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बैलेंस ऑफ एरे की जो पोजीशन में, मतलब थर्ड लोकेशन में जो मुझे वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, दैट इज न्यू वैल्यू में डायरेक्टली डाल दूंगी। हो गया इंसर्शन। क्लियर एवरीवन? अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू इट। खत्म, कोड खत्म हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ सबको? यस, एवरीवन इज क्लियर दिस? Yes. ओके फाइन। Yes, ma'am. कॉपी किया, बट अभी हमारा मेन एम क्या है, आई नीड टू डिस्प्ले इट। तो मतलब मुझे फिर से फॉर लूप, अभी डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप n-1 से चलेगा क्या? नहीं, डिस्प्ले करने के लिए कैसा फॉर लूप चलेगा हमारा, फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस। डिस्प्ले करना है तो 0 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो नई वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की है वो भी डिस्प्ले करनी है। इसलिए फॉर लूप कैसे आएगा, फॉर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर डिस्प्लेइंग एरे 0, आई इज अपना हमेशा का स्टेटमेंट, आई इज लेस देन, ओके यहाँ पे कौन आएगा, अपना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज n, एंड यहाँ पे क्या आएगा N. i प्लस प्लस। तो मुझे Yes, बोलो i लेस देन और इक्वल टू n आएगा या इक्वल सिर्फ लेस देन n आएगा? यस, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट देती हूँ डिस्प्लेइंग रिजल्ट। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, रिजल्ट डिस्प्ले कर रही हूँ जो कि मैंने इंसर्ट किया है। ओके, डिस्प्लेइंग रिजल्ट हियर। ओके, रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए मेरा सी आउट क्या आएगा, सी आउट बैलेंस ऑफ, यस बैलेंस ऑफ क्या डिस्प्ले कर रही हूँ मैं, Hi. यस यस बैलेंस ऑफ आई। एग्री एवरीवन? मैं डिस्प्ले कर रही हूँ उसको। फाइन, नाउ टेल मी, आई लेस देन एन करके चलेगा क्या, मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा, 0th लोकेशन की वैल्यू स्टोर होगी दैट इज 1000। 0 लेस देन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5। 0 लेस देन 5 डिस्प्ले, देन आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेकेंड इटरेशन में क्या वैल्यू होगी, आई इक्वल्स टू 1। अभी चेक करो, i की वैल्यू 1 इज लेस देन 5 एंड n की वैल्यू क्या है मेरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल्स टू 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 थे यहाँ पे फर्स्ट वाला एरे का। अभी मुझे बोलो सेकंड लोकेशन की वैल्यू डिस्प्ले होगी i इक्वल 1 इज लेस देन 5, यस, मतलब 2.0 डिस्प्ले होगा। अगेन i इंक्रीमेंटेड बाय 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नाउ, दैट इज 2। चेक करो 2 इज लेस देन 5, यस, अंदर जाके वो क्या करेगा, सेकंड लोकेशन की वैल्यू दैट इज 3.4 डिस्प्ले करेगा। फाइन, again I incremented by 1, what is the value of I now? Check करो condition, 3 is less than 5, yes, again it will display the third location जो हमने insert किया 80.0, it will display. Fine, again we incremented I by 1, what is the value of I now, that is 4. 4 is less than 5, yes, it will display, the value will be what, 7.0. Again check I equal to I plus 1, what is the value of I now? I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, I will be 5। अभी मुझे बोलो फिफ्थ लोकेशन में हमारा ऑलरेडी एक वैल्यू हम लोगों ने आगे शिफ्ट किया है, तो मुझे बोलो i इज लेस देन 5 इज लेस देन 5, लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट Equal करेगा to. क्या वो, यस, so Like. it required I is less than or equal to n. So likewise you can develop insertion of element into an array according to this logic. Everyone clear this? Now I am running that code. I'm taking one array here, that is a of 10. Okay, okay, then I'm using that variable, we just running it, and I'm taking c out, that is number of, enter the number of element into array. Okay, array में हम लोग element enter कर रहे हैं। fine, okay, then see in that array and okay, now अभी हम लोग, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, array को स्कैन कर रही हूँ। ओके, for loops I equal to 0, ओके, then I less than n I plus plus। अभी आपका लर्न बाय हार्ट होना चाहिए एरे के कंसेप्ट। ओके, अभी फिर से आपको लॉजिक लगाते बैठने की जरूरत नहीं, एक बार प्रैक्टिस हो गई
it will be more clear. Okay, अभी हमें क्या करना है, array को scan करना है. Okay, so C in A of I. Okay, fine everyone. अभी हम लोगों ने array को scan किया. अभी हम क्या करेंगे, array को print करेंगे. Fine, scanning the array. Okay, then printing the array. अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे, see out printing. I'm just writing one statement here. Printing an array. Okay, पहले हम लोग array को display भी कर लेते हैं so that it will more clear. Okay, fine. Then again I'm using same for loop here. Okay, so I'm just copying paste. You don't do the copy paste. I don't have time now. The time is too less now, but we have to complete that logic. That's why I'm doing copy paste. You don't do this. Okay, see out. We have to display. Okay, that is I need to use. That is I have to use slash t here. Okay. ओके फाइन, डिस्प्ले भी किया. अभी हमारा हम लोग पूछेंगे सी आउट, कौन से लोकेशन से आपको क्या करना है, फ्रॉम विच लोकेशन. यस, क्या पूछना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम विच लोकेशन और पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट. पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट. ओके, न्यू एलिमेंट आपको क्या करना है, कौन से पोजीशन से इंसर्ट करना है. Okay, that we have to do here. Fine. So I'm scanning C in the variable name. I'm using position, right? I'm not declaring. I'm taking one POS, one variable. That is, I'm scanning here position. Okay. कौन से लोकेशन से लेना है, लिया. Okay. Then I'm using for loop. For अभी कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी हम लोगों ने देखा I कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, n-1 बोलो. Then I should be greater than or equal to position. Then yes, then I minus minus. Okay, then start. अभी हम लोग क्या करने वाले इसमें, what is the next statement here? Yes, array of a of I plus 1 में हम लोग क्या, yes, I plus 1 में हम लोग डालेंगे. ये लॉजिक आपका क्लियर हुआ ना, बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. a of I then semicolon. फाइन, ये इतना सिर्फ हम लोग इसमें करने वाले हैं. और नीचे हम लोग क्या करेंगे, array of पोजीशन लोकेशन पे हमारी वैल्यू जो भी है वो डाल देंगे. ओके, फ्रॉम विच लोकेशन यू वांट टू एंटर, बट हम लोगों ने न्यू वैल्यू स्कैन नहीं की ना. सी आउट एंटर न्यू वैल्यू. ओके, वो तो पूछना पड़ेगा हमें, है ना. फैशन एंटर न्यू वैल्यू, जिसको इंसर्ट करना है उसको मैंने इंटर ही नहीं किया, सो वी हैव टू एंटर इट. ओके फाइन. देन सी इन वैल. सो वैल नाम के वेरिएबल को ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीजर कॉमा C++, anywhere you can declare it, but it should be declared on upper side. Okay, fine. Okay, so in position में क्या चला जाएगा हमारा, न्यू वैल्यू, that is val नाम का जो वेरिएबल है. I hope everyone is agree with this. ये हो गया. अभी मुझे डिस्प्ले करना है. Okay, so डिस्प्ले करने के लिए again I am using same loop here, control C. Okay, then control V. बट यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप जो डिस्प्लेइंग आएगा, ये वैल्यू कॉपी हो गई. ओके, अभी मैं क्या लिख रही हूँ, सी आउट प्रिंटिंग रिजल्टन एरे. ओके, प्रिंटिंग रिजल्टन एरे here. Fine. So we have to print it, then display it now. Just here कौन सा एक स्टेटमेंट आएगा, इक्वल टू करना पड़ेगा तो ही डिस्प्ले होगा. Now we are running it. Just concentrate here. Why it's not running? Okay, dear student, you just do this from after finishing the lecture or all session today. Then do it and run it. Okay, fine everyone. Yes, ma'am. Okay, so there is some problem for display. I'm just starting new online GDB.